Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Rabba baba 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 baba. Rabba Chandrabari Boli Rabba Kala Rabba Shikla Rabo. Rabba Chandrabari Boli Rabba Kala Rabari Boli Rabba. Rabba Chandrabari Boli Rabba Kala Rabba Shikla Rabo. Rabba baba 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 baba. Rabba Chandrabari Boli Rabba Kala Rabba Shikla Rabo. Rabba Chandrabari Boli Rabba Kala Rabari Boli Rabba. Rabba Chandrabari Boli Rabba Kala Rabba Shikla Rabo. Robina Rabba Kala Rabba Shikla Rabo. Rabba Chandrabari Bara Baba 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 Baba. Rabba Chandrabari Boli Rama Kala Rabari Boli Rabba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rabba Chandrabari Boli Rabba Kala Rabba Shikla Rabo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah. Hallelujah. दुख की गहराइयों से यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, बड़ी चाहत से अपनी बाहों में लेने यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुझे, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुझे, यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, बड़ी चाहत से अपने बाहों में लेने यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे।
यीशु बुलाता तुझे। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे। अगर आज शाम के टाइम आप दुखी है, परेशान है, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुझे। दुनिया में रहते हुए हमारे पास आनंद नहीं है, शांति नहीं है, मगर प्रभु यीशु हमें आनंद और शांति दे सकता है। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे। सोच समझ कर उसे नहारो, आनंद अनोखा देगा तुझे। यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे। बड़ी चाहत से अपने बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत वाले नाम में आप सब दी सलामती होवे। प्रभु यीशु मसीह आप सब ਨੂੰ बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। उस मालिक ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਜਾਂ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਿਆਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਅਜਰ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਅਜਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹੀਵਾਲ पाकिस्तान तो ज्वाइन ने, खुदा बहुत बहुत बरकत आशी देन। और मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा दमन सराय जलंधर से हमारे साथ ज्वाइन है। प्रभु यीशु मसीह दमन को और हमारे आंटी अंकल को, परिवार को, परमेश्वर सारे घराने को बहुत बहुत आशीष ते बरकत दें। दमन बेटा आज बहुत दिन के बाद आया है, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ। परमेश्वर की बड़ी दया कृपा रहम दमन के ऊपर, इनके खानदान के ऊपर बनी रहे। और दलजीत कल्याण जी आज बहुत देर के बाद आए ने, मैं खुदा का शुक्रिया करता हूँ। द मैन ऑफ गॉड पास्टर दलजीत कल्याण जी, खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਅਨੀਤਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੀਤਾ ਚੀਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। और सिस्टर रीटा जी जो कि हर रोज की तरह साढ़े नाल साउथ लंडन तो ज्वाइन हो गए ने, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाँ। परम पिता परमेश्वर सिस्टर रीटा उन्होंने हसबैंड बच्चों खुदा बहुत बहुत बरकत आशीष देने। इस तरह ही सोनी कौर हर रोज की तरह साढ़े लंडन तो ज्वाइंट है। प्रभु यीशु मसीह सोनी कौर नू, परिवार नू, खानदान नू यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत आशीष देने। इस तरह साढ़े बच्चे लाहौर तो सैमुअल, सभा, डैनियल और रीना, इमानुअल, इमानुअल दी वाइफ, बच्चे और साढ़े आंटी अंकल हमेशा साढ़े नाल लाहौर तो जुड़ते हैं। असी खुदा दे शुक्रिया करते हैं सारे परिवार लई। परमेश्वर अंकल नजीर दी सारी फैमिली नू खुदा बहुत बहुत बरकत आशीष देन। इस तरह साढ़े आंटी जी मार्गरेट लैकट जी हर रोज की तरह साढ़े नाल वॉलसल यूके तो ज्वाइन हो गए ने। प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष ते बरकत देन। अज टुडे इज वेरी लवली वैदर इन यूके, तो थोड़े डार्क डार्क कपड़े असीं ते इसलिए पाए हैं। अज बहुत लवली वैदर है प्रभु की दया ना, कृपा ना। तो असीं हुणे हुणे बाहर गए सके, आए सके बाहरों, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि सम टाइम सैटरडे रेवरेंड नवजोत कौर का शॉपिंग डे हुंदा है, शॉपिंग डे हुंदा है। तो इसलिए कहती मेरा नाम ना लियो उत्ते लाइव ते, पर मैं दसना तो पैना है रीजन लेट का की आ। तो इसलिए अज
ਰੈਵਰੈਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਡੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਿਆ ਜਾਣੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ तो शॉपिंग का डे भी अज सीगा अज भी समा सीगा कि वूमेन ऑफ गॉड शॉपिंग करे बैग बुग नवे लेने सीगे तो खुदा का धन्यवाद है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी को ब्लैस करन आशीष बरकत देन और जिन्हें भी भैन भरा अलग अलग जगह तो साना ज्वाइन ने मैं सारे लिए खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया करदा परमेश्वर तुहानू तुहाडे परिवारां नू खानदानां नू खुदावंद बहुत बहुत बरकत आशीष देन सो सबसे पहले मैं दुआ करूंगा आज हमने कोई म्यूजिक नहीं लगाया आज हमने स्टेज में चाहा कि हम दुआ करें और आपके साथ इंट्रोडक्शन करें बजाय कि हम इंतजार करें सॉन्ग की सॉन्ग खत्म हो तो आज नवजोत कौर जी चाहते हैं कि खुद ही में सिंगिंग करनी है खुद ही में प्रचार करना है और खुद ही में डफ भी बजाना है कल सिस्टर रीटा में लिख रहे थे सिस्टर रीटा में लिख रहे थे कल कि सिस्टर ज्योति जी डफ तुसी बजाओ ड्रम बजाओ विच तो मैं प्रभु का धन्यवाद करदा ना सारियां गल्लां लई परमेश्वर प्रभु सानू सारिਆਂ बहुत बहुत बरकत दे उस तो पहला कि जी ठीक है नीता जी ना तब के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो भी है चंगियाई दे हर तरह की जो भी प्रॉब्लम है बीमारी है यीशु मसीह हर बीमारी से चंगा करने वाला खुदा है मम्मी के लिए हम दुआ करेंगे नीता चीमा की मम्मी शी इज नॉट फीलिंग वेल टुडे उनके लिए भी हम दुआ करेंगे खुदावंद उनको पूरे तौर पर चंगा करे और खुदा चंगा करने वाला खुदा है जो एक मौसम ही ऐसा है नीता चीमा रेवरेंड नवजोत के पापा जी को भी सेम प्रॉब्लम थी उल्टियाँ आ रही थी जो भी कुछ खाता थे लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप सबकी दुआ से आज 2 दिन से वो ठीक है कल भी ठीक थे आज भी ठीक है हम खुदा का शुक्रिया करते हैं कि खुदा ने ये सेम प्रॉब्लम जो नीता चीमा लिखी है वो सेम प्रॉब्लम ही रेवरेंड नवजोत को रेडी को थी और आज भी बात की है कल भी बात की थी खुदा ने उनको चंगा किया है दुआओं के द्वारा और अब हम दुआ करते हैं आपकी मम्मी के लिए भी खुदा में यीशु मसीह वही शिफा हाथ आपकी मम्मी के सिर पे रखे जो ज्योति के पापा के सिर पर रखा है तो खुदा ने उनको अच्छा किया है तो परमेश्वर आपकी मम्मी को भी अच्छा करेगा क्योंकि उसके 39 कोड़े की मार खाने से आपकी मम्मी चंगी हो चुकी है यही बात हम रेवरेंड नवजोत कौर के पापा जी को हम बोल रहे थे नाजरीन इनके मम्मी पापा बिलीवर भी नहीं है लेकिन वो जब दुआ करते विश्वास करते हैं जब हम दुआ करते हैं वो बिलीवर नहीं है मगर हमारी बड़ी बहन ज्योति से बड़ी बहन है उनका बहुत विश्वास है बिलीव है और वो हमारे साथ मिलकर दुआ करती है अभी हमने बड़ी बहन को वहाँ पर ठहराया हुआ है पापा जी की सेवा के लिए तो अभी हमारी बड़ी बहन उसके लुक आफ्टर करती ज्योति बड़ी बहन तो दुआ करती है हम कहते हैं कि जब भी पानी भी देते पापा जी को दुआ करके दो तो ऐसे ही है दुआएं हालात बदल देती है और यीशु के नाम से हर बीमारी दूर हो जाती है और जो परिवार में थोड़ी घबराहट थी खुदा ने घबराहट को दूर कर दिया खुदा ने उनको अच्छा कर दिया है तो मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अनवर भट्टी जी साथ नाल कराची तो ज्वाइन हो गए ने प्रभु यीशु मसीह अनवर भट्टी जी को बहुत बहुत बरकत आशीष देन इस तरह साथ अंजना बाड़िया अलावरपुर तो ज्वाइन हो गए ने प्रभु यीशु मसीह अंजना और मनीष और छोटी बेटी को खुदा बहुत बहुत बरकत और आशीष देन और जिन्हें भी जीज भैन भरा साथ ज्वाइन हो मैं सारे लिए दुआ गो हाँ आइए आप अखा बंद करिए जो भी तुसी लिखिया है परमेश्वर ने सारा कुछ देख लिया है चाहे किसी दी मम्मी बीमार है चाहे कोई और है सेम बात
नीता जी माँ आपने लिखी है, सेम बात हम बोल रहे हैं। आपकी मम्मी भी बिलीवर नहीं है, मगर फिर भी यीशु चंगा करेगा, वो आपके ईमान के द्वारा। हमारा ईमान था, ज्योति बहुत घबरा गई थी और मैंने कहा घबराना नहीं है। ऐसे टेम्पटेशंस आती है, कई दफ़ा आजमाइश आती है हमारा ईमान परखने के लिए, और हम खुदा का शुक्रिया करते हैं कि खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुना, परमेश्वर ने दुआओं को सुना और हमारे पापा जी बिल्कुल अभी ठीक हो गए ने। खुदा का शुक्र है, कमजोरी है 2-3 दिन में, वो भी ठीक हो जाएंगे। और ये दुआ के द्वारा हुआ है, ये नहीं है कि उनको आपने जूस पिलाया, ये पिलाया, वो पिलाया। सबसे बड़ा टॉनिक जो है यीशु का लहू है, जो चंगाई देता है वो यीशु के लहू के द्वारा चंगाई मिलती है। तो मैं हमेशा यही दुआ करता है, खुदावंद आप सबको खुश रखे, आपके परिवारों को, चाहे आपकी माँ है चाहे बाप है, वो हमेशा खुश रहें। इसलिए अभी मेरा फोकस हमेशा जो ज्योति के मम्मी पापा उनके ऊपर ही मेरा फोकस रहता है। कई दफ़ा ज्योति को पता भी नहीं होता अभी विश्व जी ने भी फ़ोन किया है। तो कल भी ज्योति का फ़ोन आया, क्या कर रहे थे, मैंने कहा मैं बीबी से बात कर रहा था। ये सोच रही थी भी मेरी तो बीबियाँ बहुत है ना, ऑनलाइन पे मेरी हम बीबियाँ बहुत हैं। फिर मैंने इनको बोला कि आपकी जो मम्मी है उससे मैं बातचीत कर रहा था, तो बस मैं बता रहा था बीबी जी आप भरोसा करें, हम दुआ करते हैं और खुदा चंगा करेगा। पहले हमारी बीबी जी थोड़े दिन बीमार थी और खुदा ने उसको भी चंगा किया, उसने सबको कर दिया। उनके लिए दुआ की, परमेश्वर ने उसको अच्छा किया। फिर अभी पापा जी बीमार है, तो परमेश्वर का शुक्र है कि पापा जी भी ठीक हो गए हैं। तो आप में से भी जो लोग बीमार है, यीशु आप लोगों को भी अच्छा करेगा। कुछ वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ वेदर ऐसा है कभी बहुत ज़्यादा सर्दी बारिश हो जाती है, सेम इधर है, और कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसके लिए कभी वेदर की वजह कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। स्पेशली तौर पे जो हमारे पेरेंट्स ओल्ड होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। रफ़ीक मसीह, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको आपके घराने को बरकत दे। और बलविंदर पॉल जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਈ, ਵਾਈਫ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, हर बीमारी तो परेशानी तो बचा के रखन। खुदा की बड़ी दया कृपा रहम सारे घरानियां उत्ते बनी रहे। आप सब लोग बड़े ईमान के साथ खुदा के आगे दुआ प्रार्थना करते हैं, अपने परिवारों के लिए, अपने लिए आप हर रोज दुआ प्रार्थना करते हैं। कल रात लेट नाइट ज्योति जी का प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया था, यीशु मसीह की आवाज़ प्रोग्राम, उसमें मैं बता रहा था वॉक विद गॉड। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तुम्हारे बीच में चलू फिरूंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। तो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हम उसके प्रजा के लोग हैं, तो वो हमारी अगुवाई करता है। तो काफ़ी लोग थे, रात काफ़ी लेट था, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारी पाकिस्तान वाली फैमिलियाँ उस टाइम भी ज्वाइंट थी, और हमारे एडवोकेट डान शमाल जी ज्वाइंट थे रात के टाइम, अनीता चीमा जी और सिस्टर रीटा जी, और स्वीडन वाले, इटली वाले, सब के लिए खुदा उनका शुक्रिया करता हूँ, जो रात के टाइम भी जब भी हम लाइव पे होते हैं, आप लोग लाइव पे आते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और जो हम आप लोगों के लिए बरकत बोलते हैं, आप उस बरकत को रिसीव करते हैं। आए हम दुआ में जाएंगे। परम प्रधान शिव शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, आज शाम के टाइम चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ जुड़े ने,
ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਸਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਯੈਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਗਾਡ ਆਈ ਸਪੀਕ blessing ਯੈਸ ਖੁਦਾਵੰਦ all the people of God right now Father God open your heavenly door ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਯੈਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਯੈਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਯੈਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗਾਡ। ਆਦਿ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਦਿ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਤੇ ਯੈਸ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਲਾਮ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਯੈਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਜਿਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾਅਵਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਖ ਲਹੂ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਰੱਖ ਲਹੂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਮੀਨ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ इस बेनती सुनो कबूल करो यीशु मसीह के नाम में ਆਮੀਨ आमीन 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 हालेलुया गॉड ब्लेस यू होना सी प्रभु दी महिमा ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈਏ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸਾਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ
दिने राती गुण गाइए रहिए भरपूर ओवे दिने राती गुण गाइए रहिए भरपूर बड़े चावां नाल बंदे खिच जाइए बड़े चावां नाल बंदे खिच जाइए सच्चे रब दा शुक्र मनाइए हालेलुया 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 करे रब दे नाल बदनीति बंदे कदे न बंदगी कीती करे रब दे नाल बदनीति बंदे कदे न बंदगी कीती डर रब दा न दिल च बसाया डर रब दा न दिल च बसाया पापा दे तू खेत बीज ले यीशु नाम दा क्यारा भी न लाया पापा दे तू खेत बीज ले दुनिया दी मौज विच करदा कमाल वही दुनिया दी मौज विच करदा कमाल वही फस जो कड़की विच बंदे तेरी जान वही फस जो कड़की विच बंदे तेरी जान वही खुला साडा यीशु दा द्वारा पापा दे तू खेत बीज ले खुला रंगा साडा यीशु दा द्वारा पापा दे तू खेत बीज ले यीशु नाम दा क्यारा भी न लाया पापा दे तू खेत बीज ले इन्ना पेड़े फैशना ने तेनू दिता डोबियो इन्ना पेड़े फैशना ने तेनू दिता डोबियो ओ छेती कर तो वाले तां ले जू तेनू रोड़ ओए छेती कर तो वाले तां ले जू तेनू रोड़ ओ छेती कर तो वाले तां ले जू तेनू रोड़ ओए छेती कर तो वाले तां ले जू तेनू रोड़ शैतान बनदा नहीं किसे दा प्यारा पापा दे तू खेत बीज ले शैतान बनदा नहीं किसे दा प्यारा पापा दे तू खेत बीज ले कर रब दा नाल बदनीति बंदे कदे न बंदगी कीती कर रब दे नाल बदनीति बंदे कदे न बंदगी डर रब दा न दिल च बसाया पापा दे तू खेत बीज ले ओ डर रब दा न दिल च बसाया पापा दे तू खेत बीज ले यीशु नाम दा क्यारा भी न लाया पापा दे तू खेत बीज ले ओ पिछली उम्रे बंदा जाके रब दा नाम ते आंदा पिछली उम्रे बंदा जाके रब दा नाम ते आंदा ओ भगती वाला पेश बना के रब दा भगत कहांदा भगती वाला पेश बचा के रब दा भगत कहूं रेया फिरदा जवानी च हमारा पापा दे तू खेत खेत बीज ले यीशु नाम दा क्यारा भी न लाया लाया पापा दे तू खेत बीज ले यीशु नाम दा क्यारा भी न लाया पापा दे तू खेत बीज ले यीशु नाम दा क्यारा भी न लाया पापा दे तू खेत बीज ले ओ पापा दे तू खेत बीज ले पापा दे तू खेत बीज ले ओ पापा दे तू खेत बीज ले खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है पिकाना तेरा मैनू चंगड़ा तेरा मैनू चंगा लगा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है मेरी जान चाहती तेरी बारगाह गानो मेरी जान चाहती तेरी बारगानो मेरा मन तेरा तन भी करदा सना है मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है अटे रंग चिड़िया ने आल न पाया तेरंग चिर
चिड़िया ने आल न पाया बने उड़ मोता दे रहने दी दिशा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है हाय ऐसे तरह है मेरे बादशाह हाय ऐसे तरह है मेरे बादशाह तेरा मजबूर लई एक पनाह है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है मुबारक तेरे कर दे सब रहन वाले मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले सदा तेरी ना दे मुंह भी सदा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है ओहो खुदा बंदा रखो लश्करां दा खुदा है मुबारक है ओ जिंदा है जो जोर तेथो मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेथो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ लश्करां दा खुदा है ਓਹ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ लश्करां दा खुदा ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਰੋਣ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਬੋਲੋ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੋਣ ਸਭ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਠਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਅਜੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਔਰ ਮੋਨਿਕਾ ਹੂਜਾ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸਾਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੋਨਿਕਾ ਹੂਜਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗਾਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗਾਡ ਅਨਵਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਸਾਨਾ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਜੋ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹੈਲੋ जी जी जैम श्री सर जी सर जी मेरी तरफ से आपको भी सलाम और हमारी बहन को भी बहुत बहुत सलाम दिल से आपको वेलकम करते हैं खुदाम का शुक्र करते हैं जो हमें मौका देता है बार बार कि हम खुदाम के हजूर झुकें तौबा करें और खुदाम के फजल को पा सकें जी आमीन आमीन अपना नाम तो मैं काफी देर वेट कर रहा हूँ नहीं कल सेकंड टाइम मीटिंग स्टार्ट की थी हमने मगर आई थिंक आप सो गए होंगे फिर लेट हो गया इसके थोड़ा वो जरा मैं है जी जी मैं 12 बजे तक वेट किया है 12 बजे मेरा है शायद आपने स्टार्ट किया 12 मेरा ख्याल 12 बज गए होंगे 8 बजे थे जाएंगे चले तो 4 घंटे का फर्क है जी 7:30 8 बज गए थे 12 बज गए होंगे मगर काफी लोग पाकिस्तान से ज्वाइन थे उस टाइम भी जी 12 बज गए थे यस जी काफी लोग ज्वाइन थे उस टाइम डांसमान जी थे और लाहौर वाले थे खुदावंद का शुक्र है तो आज पट्टी साहब गैस जी
आज सरे नो जोर हासिल करेंगे, जी वो उकाबों की मानद बाल और पार से उड़ेंगे, जी वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, जी वो चलेंगे और माना ना होंगे। जी पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। एक लड़का संडे स्कूल अटेंड किया करता था। जी वो वहाँ हमदे सुना और बाइबल मुकद्दस की तालीमात सीखा करता था। जी क्रिसमस सीजन शुरू हुआ तो लड़के ने खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश के मुतल्लक सीखना शुरू किया। जी उसने सीखा कि किस तरह खुदाम यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ जी और वो सर्दियों के दिन थे। जी जब क्रिसमस सीजन का पहला संडे था जी तो लड़के को पास्टर जी ने कहा कि आज मैं सबका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। जी लड़का बहुत एक्साइटेड था। जी उसने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी आप आज शाम को मेरे घर आ जाएं, जी मैं अपने घर ही टेस्ट देना चाहता हूँ। जी पास्टर जी ने घर जाकर टेस्ट लेने का वादा कर लिया, जी जिस पर गुलाब की पत्तियां डाली गई थी। जी जब पास्टर जी गली में से गुजरकर दरवाजे पर पहुंचे तो सब घर वालों ने पास्टर जी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। हालेलुया बच्चे ने पास्टर जी के हाथ चूमे और घर के अंदर ले गया। जी पास्टर जी ने पूछा, बेटा ये क्या? तो लड़का बोला, क्रिसमस बहुत नजदीक है, मैंने अम्मी अब्बू से नए कपड़े और नए जूते लेने की फरमाइश भी कर दी है जी और मैं ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। जी तो इस खुशी में कि आज आमद का पहला इतवार है तो मैंने सोचा कि घर में आमद की पहली मोमबत्ती भी आप जलाएं। आमीन तो पास्टर जी बोले, ठीक है, लेकिन जो संडे स्कूल का टेस्ट है वो तैयार किया है कि नहीं? जी तो लड़का बोला, मैं आपके वेलकम के लिए लगा रहा और तैयारी नहीं कर सका। तो मकसद के लिए मैं आया हूँ और जिस टेस्ट को लेकर मैंने खुश होना था वो तुमने नहीं किया जी और जो काम मैंने कहा नहीं उसमें तुमने अपना कीमती वक्त जाया कर दिया। जी तुमने फूल निछावर करके मेरा इस्तकबाल करके कैसे समझ लिया कि मैं खुश हो जाऊंगा जी और जिस काम से मैंने खुश होना था वो तुमने किया ही नहीं। जी मुझे इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए था। जी ऐसा है कि खुदावन का इंतजार कैसे करना है। जी तुमने मेरा इंतजार किया और इसी तरह खुदावन यीशु मसीह आपके दिलों में आना चाहते हैं हालेलुया और जब हमारे दिल खुदावन देंगे तो खुदावन खुश होंगे और इतनी बरकतें देंगे कि तुम्हारे पास समेटने की जगह ना होगी। जी ये एक हकीकत है जी कि हम अपने त्योहार बड़े खरोश से मनाते हैं। जी 2-3 माह पहले ही हम तैयारी करने लगते हैं और इस ईद का इंतजार करने लगते हैं। जी हम बड़ी दौड़ धूप करते हैं। कई जी। लोगों के पास वसाइल नहीं होते जी। और वो उधार लेकर ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। जी ये तो उस दिन का इंतजार होता है। इसके अलावा भी कई किस्म के फंक्शन हमने रखे होते हैं, जी। जैसे बर्थडे पार्टी है, शादी की सालगिरह है, जी किसी तरक्की के लिए खुशी मनाना, हाँ जी और हम इन दिनों का इंतजार भी करते हैं। जी ये ऐसे दिन होते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों की बड़ी फिक्र होती है। जी शादी से पहले हमने कभी अपने घर में सालगिरह का बिशप सब केक नहीं काटा था, जी क्योंकि एक बहन थी और शादी के बाद वो अपने घर चली गई और हम 4 भाई थे। बस अपने अपने काम में लगे रहते और इस जब खुदाम के फजल से सबकी शादियां हुई, सभी अपनी अपनी शादी के केक काटने लगे जी और इसी तरह बच्चों की सालगिरह मनाना शुरू कर दी। और बच्चे इस दिन का खास इंतजार करते हैं क्योंकि उनको इस दिन गिफ्ट मिलने होते हैं, उनको पैसे मिलने होते हैं। जी खैर ये दुनिया की बातें हैं, आमीन लेकिन आज के टॉपिक जो मैंने चुना, हम सब इन दिनों का इंतजार तो करते हैं लेकिन हम खुदावंद की दूसरी आमद का इंतजार तो नहीं कर रहे। हालेलुया आज हमने ये देखना है, अपनी जिंदगी पर गौर करना है, जी अपने कामों पर गौर करना है, हालेलुया अपनी रोजमर्रा जिंदगी के कामों पर गौर करना है। ये ऐसे ही है जी कि जैसे हर माह की पहली तारीख को हमें तनख्वाह या पेंशन मिलनी होती है जी और आखिरी दिनों में अक्सर हमारे पास पैसे नहीं होते जी और हम पहली तारीख का इंतजार करते हैं जी ताकि जब पेंशन या तनख्वाह मिल जाती है तो हमें दिली सुकून मिल जाता है यस कि दुनियावी सब चीजें पैसों से ही जाती हैं जी और फिर हम इन पैसों को बड़ी एहतियात से खर्च भी करते हैं। जी
आज हम गौर करें कि क्या हम खुदावन का इंतजार कर रहे हैं। आज हम एंड टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी आज हमें अपने दिलों को पाक करने की जरूरत है। आमीन पास्टर जी, बिशप साहब 2-3 दिन पहले कुछ लोग मेरे घर अफसोस करने के लिए आए थे। जी तो उनमें से एक आदमी वो था जिसने 20-25 साल मेरे साथ फुटबॉल भी खेला। हाँ। दिन रात हम इकट्ठे रहते थे, हर जगह इकट्ठे हाँ और फिर कुछ लोग बहुत अमीर और ताकतवर थे, ताकतवर आदमी मिल गया और उसने मेरी मुखालफत भी शुरू कर दी हम्म कि सारा शहर इस आदमी की इज्जत करता है, हम्म क्योंकि हर कोई जो है मशवरा उसको मुझसे लेना होता था। जी इस वक्त मैं एक अहदेदार था डिस्ट्रिक्ट जेल में, तो सारे मामला जो मेरे पास होते थे, सारे मसले मेरे चलते थे। जी तो इन लोगों ने मेरी मुखालफत शुरू कर दी कि ये आदमी क्रिश्चियन है, हम्म कि इसकी बात हर एक जगह हमें माननी पड़ती है। जी तो लेकिन खुदावन जब मेरे साथ था और खुदावन का मैं हाथ पकड़कर आगे बढ़ता रहा, तो उसने मुझे कहा कि आज के बाद मैं आपसे कोई मुखालफत नहीं रखूंगा। तो मैंने कहा कि अब मुखालफत का वक्त नहीं रहा, जी अब अगले जहान के बारे में सोचो, जी उसका इंतजार करो। मेरे पास अब इतना वक्त नहीं कि दुनिया के बारे में सोचूं। जी तो आज हमें अपने दिलों से नफरतों को, कदूरतों को निकालना है, जी अपने दिलों को खाली करना है। हालेलुया आज जल्दी करें कि जिस बहन भाई से हमारी नाराजगियां चल रही हैं उनसे सुलह कर लें। हम्म ये ना सोचें कि वो पहल करेंगे, बल्कि हम खुद शुरू करें, खुद स्टार्ट लें, जी अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक बना लें। यस आज वक्त है कि हम खुदावन की दूसरी आमद का इंतजार करें। जी आखिरी वक्त की निशानियां के जल्जले आएंगे, मरी आएगी और इस तरह के कई निशान जो है आसमान पर ज़ाहिर होंगे। जी तो आज ऐसा हो रहा है। जी आज हम अपने आप को तब्दील करें। जी ये वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। खुदावन ने हमें जो वक्त दिया है, ये एक किस्म की रस्सी है जो खुदावन ने ढीली कर रखी है। जी आज हम गौर करें, जिस तरह कमरे में लगी घड़ी रात के रोज टिक टिक करती है तो बड़ा उसके का सुकून मिलता है। जी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। हम्म अगर हम गौर करें तो ये हमें बता रही है कि लम्हात तेजी के साथ गुजर रही हैं। हालेलुया आज अपने आप को बदलें जी और अपनी जिंदगी के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लें। ये सामान नेकी के कामों से, दूसरों की दुआओं से, अच्छाई से, खुदावन के पाक कलाम की तबलीग से हो सकता है, जी क्योंकि वहाँ एक एक लम्हे का साहब होगा। हम सब बुराई के कामों से तौबा करें, क्योंकि यीशु के खून खरीदे सदा सुख पाएंगे। हालेलुया यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीद लिया है। जी इसलिए ये भी मतलब नहीं कि हम पाक साफ हैं और हम जो मर्जी करते फिरें। सब अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें जी और देखें कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, जी और अपने खुदाम यीशु मसीह का इंतजार करें। अगर हमारे नेकियों के औज़ान ज्यादा होंगे तो फिर हम खुदा यीशु मसीह का हवा में इस्तकबाल करेंगे जी और खुदा में फरमाएंगे, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे साथ आओ, जो घर तुम्हारे लिए तैयार किया गया है उनमें बसो। तो खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन 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 गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। आमीन। और क्या सुनाना चाहेंगे बेटी साहब? जी सारे गीत गाना चाहूंगा। जी मैं दर पे शाफी आया, तू सजनदा खजीना, रुड़िया मेरा सफीना, तू सजनदा खजीना, तू सजनदा खजीना, मैनू तू कंगड़े ला दे, मेरा बेड़ा डगमगाया, तौबा मेरी मैनू बख्श दे खुदाया, मैं दर ते शाफी आया, खादिम शाफी तेरा, दुख दूर कर दे मेरा, खादिम शाफी तेरा, दुख दूर कर दे मेरा, दुख दूर कर दे मेरा,
ए फजली दुखिया शाफी जिन दर ते डेरा लाया तोबा मेरी मैनू बख्श दे खुदाया मैं दर ते शाफिया आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भट्ट साहब, खुदा बहुत बहुत बरकत और आशीष देन अपने जलाल ਲਈ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। गॉड ब्लेस यू जैम सीधी। आमीन 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 आमीन। एक मिनट सर, कल मेरी वालदा का 40वां है और काफी सारे मेहमान भी आए हुए हैं, दुआ में सबको याद रखना है जी। थैंक यू सर। प्यारे प्रभु यीशु गॉड मसीह, ब्लेस यू। हम दुआ करते हैं जो कल बीबी जी का चालिया है, प्रभु यीशु मसीह जो भी कल का प्रोग्राम हो, दुआ नवाज हो, उसमें खुदावंद आपकी खास बरकत हो। जितने लोग भी आए बीबी को प्यार करने वाले, बीबी के बारे बातचीत करें, सबके लिए आशीष का कान बने, सबके लिए बरकत का कान बने। और हमारा ईमान है कि हमारी बीबी खुदावंद तेरे पास है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी बीबी को आपने अपने पास बुलाया है और प्रभु यीशु मसीह आपने पूरी भट्टी फैमिली के ऊपर बड़ी दया कृपा रहम कर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल जो भी खाने पीने का अरेंजमेंट हो उसमें खुदावंद मैं आपकी खास आशीष से बरकत चाहता हूँ। बड़ी दया कृपा रहम करें। जो पादरी साहबान आए, जो कलाम पेश करें, गीत गाए जाएं, प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष बरकत देनी। इस दुआ को सुनो, कबूल करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू भट्ट साहब, खुदा बरकत आशीष थैंक यू दे। सर। जैम सी की आमीन सर। नाज़िर जय साहब मसीह से जय मसीह। अनवर पट्टी जी फ्रॉम जेलम पाकिस्तान, हम खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनकी ज़िंदगी के लिए। खुदावंद इनको, इनके खानदान को बहुत बरकत आशीष दें। माय डियर आंटी स्किलर, गॉड ब्लेस यू आंटी स्किलर फ्रॉम जर्मनी। मे द गॉड ब्लेस हर। She always come. She always come and write on Amen. Praise the Lord. She's something writing. Every day she's coming. May the God bless her. May the God bless her family. She don't know our language, but she's coming to appreciate us. वो हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने के लिए आती है। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रिया करता हूँ उनकी जिंदगी के लिए। खुदावंद तेरे खुदावन, और जो भी किसी बीमारी में मुब्तला है तेरे खुदावन, तो उनको अपने यीशु नाम से उनको शफा बख्श, क्योंकि तेरा खून शफा वाला खून है तेरे खुदावन। तू शफा का मंबा है तेरे खुदावन। तो उनको, क्योंकि तेरे खुदावन जैसे यार ने कहा था कि तू दूर से कह दे तो मेरी बेटी शफा पाएगी, मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। ओ प्यारे खुदावन, तू हमारा ऐसा ईमान कर ताकि हम रहमतां दी तू खोल दवें आसमानां नूं, कल लावें दुखी बीमार ते साडे जय पापी इंसानां नूं। कर देवें बारिश रहमतां दी तू खोल दवें आसमानां नूं, कल लावें दुखी बीमार ते साडे जय पापी इंसानां नूं। करके तौबा हुण मैं पापा तो मुख मोड़ लिया, हुण मैं अपना रिश्ता यसू नाल जोड़ लिया, हुण मैं अपना रिश्ता यसू नाल जोड़ लिया।
ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੈ ਆਲरेडी वीडियो बार बार बंद हो रही है सो नाउ इज टाइम टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड हालेलुया तो हम कलाम की तरफ जाएंगे आज फिर हमारे साथ वुमन ऑफ गॉड रेवरेंड नवजोत कौर जी साहब नाल ने आज का वो कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे तो आए हम कलाम की तरफ जाएं और जितने भी खुदा के बेटे बेटियां ज्वाइन ने खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत आशीष दे रेवरेंड नवजोत कौर जी फिर एक बार आपका वेलकम करते हैं स्वागत वेलकम करते हैं खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे आप जो भी आज कलाम लेके आए हैं थैंक यू विशल जी अब हमारे साथ अपना कलाम शेयर करें आमीन सभी को मेरी तरफ से जैमसी की मैं जी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जी जो खुदा ने अपनी हुजूरी में बैठने का टाइम दिया हम्म। जैसे कि आप जानते हैं सब उपदेश एक 3 चैप्टर है आज मैं कोशिश करूंगी कि ये फिनिश हो जाए लेकिन टाइम के मुताबिक है तो नहीं। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं जो कि हम प्रत्येक बात के लिए समा है जो हमारा टॉपिक है हर बात के लिए एक टाइम रखा हुआ है परमेश्वर ने हर के एक इंसान का और 3 चैप्टर उसका 1 से लेके 16 तक हमने देखा था और 17वीं वर्ष में हम देखते हैं मैंने अपने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा क्योंकि प्रत्येक बात और प्रत्येक काम का एक समय है यहाँ पे भी जब हम देखते हैं कि दोनों एक धर्मी इंसान है और एक दुष्ट इंसान है मैंने अपने मन में कहा और क्या कहा ये जब आप देखते हैं कि ये सुलेमान की बुक सुलेमान ने लिखी हुई है तो वो अपने मन में बातें कर रहा हो और जब आप देखते हैं कि हर एक इंसान का जैसे कि आप वैसे भी देखो दुनिया में अगर कोई इंसान बुरा कार्य करता होगा तो आखिर में जब उसकी मौत होती है या आखिर में कुछ ऐसा उसके साथ घटित होता है तो हम सब कहते हैं कि इसने बहुत गलतियां और गुनाह किए हैं इसीलिए परमेश्वर ने अपने टाइम पे उसे क्या कर रहा है दंड दे रहा है इसका समय अब दंड का आ चुका है लेकिन अगर कोई इंसान अच्छे कार्य करता है तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पहले इसने लोगों के साथ भलाई की है बुराई नहीं की इसलिए अब बुढ़ापे के दिनों में क्या कर रहा है ये सुख के दिन व्यतीत कर रहा है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से भलाई कर रहा है दुष्टता का फल अगर वो दुष्टता का कार्य करेंगे तो दुष्टता का फल मिलेगा लेकिन वो अपने टाइम पे कभी कभी लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये इंसान बुरा कार्य कर रहा है इसे अभी दंड मिल जाए परमेश्वर तब नहीं देता
परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया हुआ है उस इंसान को दंड देने का। और 7वें वर्ष में क्या देखते हैं, मैंने अपने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। किसका? धर्मी और दुष्ट का न्याय करेगा, क्योंकि प्रत्येक बात और प्रत्येक काम का एक समय है। जो हर एक बात घटित होती है इंसान की जिंदगी में, उसके लिए परमेश्वर ने समय मुकर्रर किया हुआ है, टाइम मुकर्रर किया हुआ है। वो टाइम के बगैर, टाइम से पहले वो कार्य इंसान नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मैं ये काम करूं, और लेकिन क्या होता है कि तब आप नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम परमेश्वर की तरफ से मुकर्रर नहीं हुआ होता। इसी तरीके से परमेश्वर ने ये जो सब उपदेशिकी की बुक है, इसमें बहुत सी गहरी बातें लिखी हुई है कि जब इंसान हर एक बात का परमेश्वर ने टाइम मुकर्रर करके रखा हुआ है। जब आप देखते हैं कई इंसान दुख में, तकलीफ में गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनके ठीक होने का भी एक परमेश्वर ने टाइम रखा हुआ है। तो प्रिय सोनी सिस्टर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत बरकत और आशीष दे। और 18वें वर्ष में क्या देखते हैं, मनुष्य के विषय मैंने अपने हृदय में सोचा कि परमेश्वर ने उनको निश्चय जांचा है कि वह जान ले कि वह पशु मात्र है। अब जो इंसान है ना, मनुष्यों के विषय मैंने अपने हृदय में सोचा। जब आप देखते हैं कि इंसानों के बारे में आप बहुत सी सोचते हैं, बहुत सी सोचे कि कई बार आप सोचते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है। कई बार कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है तो आप कहते हैं कि ये बुरा इंसान है। वो उसकी बुराई या अच्छाई एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि उसने एक के साथ बुरा किया है। जो इंसान बुरा इंसान होता है वो बुराई ही करता है, वो एक के साथ भी करता है, वो दूसरे के साथ भी करता है, वो तीसरे के साथ भी करता है। जो भला इंसान होता है वो भलाई ही करता चला जाता है। लेकिन ये बात सुलेमान अपने मन में सोच रहा है, मनुष्यों के बीच मैंने अपने हृदय में सोचा, परमेश्वर ने उनको निश्चय जांचा है कि वे जान ले कि वह पशु मात्र है। जैसे कि सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत ही बड़ी विजडम कह लो कि वो इंसान की तरह ही था, ये नहीं कि उसका माइंड बहुत बड़ा था, लेकिन विजडम उसके पास बहुत सी, वो विजडम के द्वारा वो देख रहा था कि जो इंसान है, इंसान को परमेश्वर ने जांचा है और जान लेके वे पशु मात्र है। और उसने देखा कि इंसान है ना जो पशु के मात्र ही है, परमेश्वर ने जाना। अब ये बात आप किसी को कहे कि आप जानवर के जैसे हैं तो वो सोचेगा कि अरे इसने मुझे क्यों कह दिया, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से कह रहा है कि जो इंसान है वो पशु मात्र है। क्योंकि जैसे कई बार आप जानवरों को बहुत बार क्या करते हैं, उन्हें डांटते हैं, मारते हैं तो वो नहीं सुधरते। लेकिन कई जानवर होते हैं, अब अगर आप भैंस रखो अपने घर में और आप कुत्ते को अपने घर में रखो तो वो बहुत वफादारी के साथ क्या करते हैं, आपके साथ रहते हैं। और भैंस भी जब हम छोटे थे हमारे घर में भैंस थी, और हमारे जब फादर ने बेच दी तो वो भैंस ने 1 वीक तक आई थिंक वहां पे रही। उसने ना खाया ना पिया और पानी को मुंह भी नहीं लगाया। और जब क्या हुआ कि वो वापस हमारे घर में छोड़ने आए कि ये पकड़ो अपनी भैंस को, तो जब मेरी मदर ने पानी उसे पिलाया तो वो पानी पीते नहीं थक रही थी, मतलब कि वो वफादार। आज इंसानों को क्यों सुलेमान ने कहा कि वो परमेश्वर उनको निश्चय जानता कि वह जान ले कि वह पशु मात्र है। क्योंकि वो पशु जो कई होते हैं ना कि वो अपना वो खुरली वो जो यहाँ पे बांधा होता है वो उठा के भाग जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, वो वहां पे टिकते नहीं है, वो उन्हें घूमने की आदत होती है। इंसान भी जो खुदा में चलते हैं, कई बार आपने देखा होगा बार बार कई तरफों को जाते हैं, और इसीलिए जो स्वर्गीय विजडम के द्वारा भरे होते हैं। जब आप संत पौलुस की बात देखोगे तो संत पौलुस ने भी बहुत जगह पे इंसानों को कहा है कि वो इंसान जैसे कुत्ते के बारे में उसने कहा है, कुत्ता जैसे उल्टी चाटता, मतलब उल्टी करता है और फिर चाटता है ना। मतलब उन इंसानों
का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ। क्यों किया हुआ? क्योंकि इंसान वफादार नहीं, इसलिए उन्होंने किया हुआ है। अदरवाइज जो इंसान परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं वो रिस्पेक्ट के पात्र बनते हैं और वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग का भी कारण बनते हैं। 18वें वर्ष में हमने देखा कि उसको निश्चय जानता कि वह जान ले कि वह पशु मात्र है, क्योंकि मनुष्यों तथा पशुओं का अंत एक ही होता है। जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। वास्तव में उन सब में एक ही श्वास है तथा मनुष्य किसी बात में पशु से बढ़कर नहीं है। अंत सब व्यर्थ है। जब आप सब उपदेशक की बुक को रीड करते हैं ना, तो सुलेमान ने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के मुताबिक कहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ। कई बार इंसान बहुत धन जोड़ता है, घर बहुत बनाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में एक जगह पे बैठो ना, सोचो कि हम परमेश्वर का भी कार्य कर रहे हैं, हम अपने घरों का भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं, एक टाइम होगा जब खुदा की हुजूरी में हम जाएंगे, तो परमेश्वर के कार्य जो है उनका परमेश्वर हमें क्या स्वर्ग में असर देगा कि इसने फेथफुलनेस के साथ मेरे कार्य किए हैं। लेकिन जो धरती पे कार्य किए हैं उसके लिए इंसान का क्या लिखा हुआ है? मनुष्यों तथा पशुओं का अंत एक ही जैसा होता है। जब आप देखो ना, इंसान भी जब मरता है उसे भी आप देखो, उसे भी मौत आती है इंसान को। कईयों को आप जानवरों को दफनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इंसान को भी दफनाते हैं, किसी को जलाते हैं। तरह तरीके से जो इंसान की डेथ होती है उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। वास्तव में उन सब पे एक ही श्वास है। मतलब कि जानवर के भी सांस चलते हैं तो वो जिंदा है। अगर इंसान के भी सांस चलते हैं तो क्या उसे कहते हैं? जिंदा है। अगर आपने देखो, अगर आप जानवर को रखते हैं, जब वो बूढ़ा होता है ना, जहाँ जानवर को, तो जहाँ भैंस वगैरह कुछ बूढ़ी होती है ना, वो देखो कि जानवर हाफता है। जैसे आप इंसान बुजुर्ग होता है ना, तो वो हाफता है, उसे सांस चढ़ती है, वो बहुत छेती थक जाता है, वो बैठना चाहता है। इसी तरीके से भैंस भी हो और डॉग भी हो, वो हाफता है। वो आपकी तरफ, जब आप उसे लेके जाते हैं, वो आपकी तरफ देखता है। जब देखती है कि मुझे अभी बिठाए, उसके दांत कमजोर होते हैं, जैसे बुजुर्गों के दांत कमजोर हो जाते हैं। और एक दिन मैं किसी बुजुर्ग का देख रही थी, और जब आप देखो किसी बुजुर्ग को, तो उसके हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं, कांपते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होता है, बुढ़ापे के कारण उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं इतनी रहती, इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं। और अगर जानवरों को भी आप देखो ना, तो वो भी जब कमजोर हो जाते हैं तो वो भी ऐसे ढीले ढीले से, ढिलके से रहते हैं। और वो भी जब तुरते हैं तो उन्हें दर्द होता है। और जब मैं जॉब पे जाती आती हूँ तो एक बुजुर्ग है, वो हमेशा वॉक करते हैं जब मैं जाती हूँ आते वक्त। तो एक दिन उन्होंने बहुत, अभी वेदर अच्छा करके बहुत अच्छे कपड़े पाए, बहुत सुंदर लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। वो है भी ऐसे गोरे हैं। तो बहुत खुश हुआ वो, और तो मुझे कहने लगा लव यू लव यू। मैंने कहा लव यू टू अंकल जी। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो प्यार ढूंढते हैं। आप उन्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे ना, आप उनके साथ थोड़ा अट्रैक्शन के साथ रहेंगे ना, तो वो आपके साथ प्यार के साथ रहते हैं, है ना। जानवर के साथ भी ऐसे ही है। वो जानवर को आपके प्यार देंगे ना, तो वो जानवर आपके आगे पीछे घूमेगा। लेकिन यहाँ पे जानवर और मनुष्यों का में सांस है, श्वास है उनका चलता, है ना। तथा मनुष्य किसी बात से पशु से भरकर नहीं, अंत सब कुछ व्यर्थ है। जो इंसान है यहाँ पे सब उपदेशक में सुलेमान ने कहा है कि वो पशु से बढ़कर नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें ये बात लिखी हुई है, अगर आप सब उपदेशक कंटिन्यू पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है इंसान में आत्मा है और जानवर में आत्मा नहीं होती। और ये बात डिफरेंट है, क्योंकि ये लंबा मैं चैप्टर नहीं
खींचूंगी तो मैं यहाँ तीसरे चैप्टर में ही फिनिश करूंगी आज। तथा मनुष्य किसी बात से पशु से बढ़कर नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। और अगर आप देखोगे सब उपदेशक में वो कहता है व्यर्थों का व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और 21वें वर्ष में 20 वर्ष में लिखा सब एक ही स्थान को जाते हैं, सब धूल में बने और सब धूल में मिट जाते हैं। जब आप देखो कि इंसान को परमेश्वर ने कहाँ से बनाया था, मिट्टी से बनाया था, और मिट्टी से ही वो पैदा हुआ है, और मिट्टी में क्या हुआ है वो मिल जाता है। और अगर आप देखो जब परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी के द्वारा बनाया तो जिस होदी को जिसमें परमेश्वर अपनी भेंट को स्वीकार करना था ना, परमेश्वर ने कहा था वो पत्थरों की नहीं होनी चाहिए, वो भी किस चीज की होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। जब आप देखो जो मिट्टी के पोट होते हैं ना वो बहुत कूल होते हैं। गर्मी में आप अगर पहले जब हम इंडिया में थे तो मिट्टी की वो झाझर सी मिलती होती थी, और उसमें अगर आप गर्मियों में पानी रख दो ना तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप जितना मर्जी पानी पी लो। लेकिन जो फ्रिज का पानी है वो आपका गला भी खराब करेगा। लेकिन ये जो मिट्टी को कभी कभी आप जब मिट्टी के ऊपर चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और एक शेर भी होता है जिसमें माटी कहे कुहार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूगी तोए। मतलब कि एक दिन इंसान अपने पैरों के द्वारा उस मिट्टी के ऊपर चलता है और एक दिन ऐसा आता है कि वही मिट्टी के वो नीचे चला जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब धूल से बने और सब धूल में मिल जाएंगे। मतलब कि मिट्टी के द्वारा आप देखो कि किस तरीके से परमेश्वर कई बार जब हम इंडिया में होते हैं तब तो हमें कई बार मिट्टी बहुत, जब छोटे होते हैं तब तो बहुत अच्छी लगती है मिट्टी के साथ खेलना, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर कहते हैं जी मेरे ऊपर गर्दा पड़ी है, मुझे मिट्टी अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप मिट्टी को अगर देखो तो परमेश्वर ने जब मिट्टी गूंदी होगी तो परमेश्वर को भी कितनी खुशी हुई होगी ना कि जब इंसान मिट्टी के वो बनाता है, बर्तन बनाता है। और जब आप यशायाह नबी की बुक में देखो वहां पे भी हम देखते हैं कि पोट जो बना रहा था उसके पास परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा कि जाके देख कि कैसे बर्तन बनाए जाते हैं। अगर आप इंसानों को देखो कोई सांवले कलर का, कोई गोरे कलर का है, लेकिन ये जो सब आंखें बनाई हुई है, ये कान बनाए हुए हैं, ये लिप्स है, ये सिर है, बाल है, ये परमेश्वर ने जो बनाया होगा तो देखो कितनी रीझ से इंसान को परमेश्वर ने क्या किया होगा, बनाया होगा, है ना। तो 21वें वर्ष में हम देखते हैं कौन जानता है कि मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशु का प्राण नीचे की ओर मिट्टी में उतरता है। वो कह रहा है कि कोई नहीं जानता। क्यों कह रहा है? क्योंकि हर एक इंसान जो इस धरती पे है वो नहीं जानता परमेश्वर के उन गहरे भेदों को, सिवाय जिसके परमेश्वर की आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा, वही जान सकता है कि वो इंसान का श्वास कहाँ पे जाता है। ये अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखो कि जो इस धरती पे सो जाते हैं, प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है कि वो आत्माओं को परमेश्वर इकट्ठा करके एक जगह पे रखता है और वहां पे वो लोग कहते हैं परमेश्वर को कि जो लोग ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, जुल्म किए हैं, उनसे क्या कर हमारा हिसाब किताब ले, बदला ले। तो परमेश्वर कहते हैं कि अभी और रूहों का आना बाकी है। ये वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। कौन जानता है कि मनुष्य का प्राण ऊपर को चढ़ता है और पशु का प्राण नीचे की ओर मिट्टी में उतरता है। यहाँ पे सब उपदेशक सुलेमान कह रहा है, लेकिन जो अंत की वर्ष है वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे लिखा, मैंने देखा कि मनुष्य के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं, वह अपने क्रियाकलापों में आनंदित रहे, क्योंकि यही उसका भाग है। क्योंकि कौन उसको वापस लाएगा कि उसको बाद में जो कुछ होगा कि उसे देख सके। यहाँ पे उसने कहा कि मैंने देखा है। किसने? सुलेमान ने देखा है क्या? कि मनुष्य के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं है कि वो काम कार करे, जो भी क्रिया हिंदी में लिखा हुआ है।
मनुष्य के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं कि वह अपने क्रिया कामों में आनंदित रहे। मतलब जो भी वो काम करता है उसमें क्या करे, आनंदित रहे, खुश रहे। कई बार इंसान काम करते वक्त आनंद नहीं रह सकता, जब काम का ज्यादा प्रेशर होता है तब नहीं आनंदित रह सकता। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ आनंदित रहो, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन बार बार हमें कहता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें क्या करो, आनंदित रहो। क्योंकि यही उसका भाग है। किसका? एक इंसान जो जिंदा है उसका भाग ये है कि वो इस दुनिया में रहे और जो कार्य कर रहा है उसमें क्या करे, आनंदित रहे। ये उसका जिंदगी का हिस्सा है, काम करने का उसका जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि कौन उसको वापस लाएगा कि उसके बाद जो कुछ होगा उसे वह देख सके। यहाँ पे जो इंसान चला गया ना, कोई भी इंसान उस गए हुए इंसान को वापस नहीं लेके आएगा। किस लिए? कि जो हो रहा है उसे देख ले, कोई भी नहीं। कोई भी इंसान, जो इंसान को कब्र में दफन कर दिया गया है, उसे अगर कोई आवाजें भी लगाए जाके कि आओ आगे, आपकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, या कोई फंक्शन है, या कोई भी बात है, आपने कई बार देखा होगा लोग कब्रों के ऊपर जा जाके रोते रहते हैं। मेरे फादर भी एक टाइम ऐसा था कि जब वो कब्र के ऊपर अपनी मदर के लिए जाते, रो के वापस आ जाते, रोते और वापस आ जाते, और लेकिन वो आवाज नहीं देते, क्योंकि जो मुर्दे हैं कभी आवाज नहीं देते, और अगर उन्हें कहा भी जाए तो ये बात देखो तो वो नहीं देखते। इसीलिए सब उपदेशक कह रहा है क्योंकि यही उसका भाग है। क्योंकि कौन उसको वापस लाएगा कि उसके बाद जो कुछ होगा उसे वह देख सके। कोई भी इंसान जो खत्म हो गया, जो इस दुनिया से चला गया है, कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता कि आके ये देख सको, है ना, कि जो कुछ होगा वह उसे देख सके। आज के लिए इतना ही वचन काफी है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बात का, हर कार्य का परमेश्वर ने टाइम मुकर्रर करके रखा हुआ है। और कई बार हम सोचते हैं कि हम ये कार्य आज कर लेते हैं, लेकिन उस दिन क्या होता है, नहीं हो पाता। बहुत सी बातें हो जाती है और बहुत सी बातों में से इंसान गुजरता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आज हमने शॉपिंग के लिए जाना था, हमें शॉपिंग के लिए भी जाना था, और थोड़े कपड़े भी सिलाई के लिए जाना था, और कुछ और भी चीजें के लिए, बहुत सी बातों के लिए, किसी का बर्थडे था उनके लिए प्रेयर करने के लिए। आज कितने काम हमने एक दिन में किए, क्योंकि ये समय, ये टाइम परमेश्वर ने रखा हुआ है। तो जो टाइम परमेश्वर ने रखा हुआ है, इंसान उसी टाइम पे वही कार्य कर सकता है। कई बार इंसान खुद भाग दौड़ करके करना चाहता है कि मैं कर लूं अभी ये काम, तब नहीं होता। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर जी, मेरे बाप आसमानी जी, जो भी आज के दिन की प्रेयर मीटिंग हुई है, दुआ प्रार्थना हुई है, जो भी वचन शेयर किया खुदावंदा, एक एक की जिंदगी में फल लाए पिता परमेश्वर जी, और एक एक की जिंदगी को खुदावंदा फलवंत होने देना, क्योंकि हर बात का खुदावंदा आपने समा मुकर्रर करके रखा हुआ है। खुदावंदा जो बीमार है उन्हें प्रभु यीशु मसीह आपने चंगाई बख्श दी है, और खुदावंदा टूटे दिल वालों के दिल के ऊपर आपने अपने वचनों के द्वारा खुदावंदा मरहम पट्टी कर दी है। क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता, मैं यहोवा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर। खुदावंदा अगर कोई पिता परमेश्वर ऐसा ही इंसान है जिसको समझ नहीं आती मैं किस रास्ते पे चलूं, तो प्रभु यीशु मसीह जी आपकी होली स्पिरिट उन्हें गाइड करे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इसराइल के लिए, आपकी शांति अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। अब तक संभाला है खुदावंदा, सबकी आगे भी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। सब मिलकर दीवारबंदी करेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों में माफ करें। हमें मैशनों में दुश्मना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो जो बादशाह, कुदरत जलाल
हमेशा तक रही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह दी रफाकत शराकत इस खानदान मंडली नाल तमाम खुदा दे ईमानदार संत सेवक लोगों ने साडी सारिਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। The name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit. आमीन। चंदे के लिए दुआ करो। खुदावंद तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र हो इस नजराने हदीए ਲਈ। प्रभु यीशु मसीह दान जंदा जिस कमाई चो कमाई च बरकत देनी, कदी किसी चीज की थोड़ ना आवे। ਇਹ ਦਾਨ ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी रूहां यीशु ये दान चंद द्वारा बचाई जान। ਤੁਹਾਡੇ नाम महिमा इज्जत जलाल मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो अंत में सारे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह दी, हर जय मसीह दी। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। मेरी दुआवां तुसीं रहो सदा हसदे, रब दी हजूरी विच रहो सदा बसदे। गॉड ब्लेस यू।